عمل میں لا رہے ہیں اور اس پروگرام میں تشریف فرما مولانا میرے دوست رجسٹر تشریف فرما میرے ساتھی اور ساتھی برادرس تمام لوگوں کو میرا سلام۔ آج ہم وہ مرحومین کی بھی یاد آ رہی ہے۔ آج ہمارے مجید عارف صاحب نے اپنے بک میں اپنے کتاب میں یہ تحریر کیا کہ صاحب کی زندگی اور انتقال تک ان کی کارکردگی کیا تھی، اور جو آج بھی دینی مسائل، سیاسی، سماجی، علمی جو حالات میں جو لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے تعلق سے بھی مجید عارف صاحب کے ذہن میں ہے۔ اور مجید عارف صاحب کی میں بہت کامیاب ذہن والے شخصیت ہے، اور انہوں نے اپنے باہر رہ کر بھی انہوں وہاں پر ایک جاگ کرتے ہیں باہر، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مقام کے لوگوں سے پیار اور محبت کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کی جاری رکھنے کے علاوہ ان کے ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھا، اور جو حالات سے جو لوگ گزرے ان کی تحریر کرتا آج کتاب رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اور یہ چیز ایک ایسی ہے کہ لوگ یہ کبھی بھی دیکھتے ہیں تو مرحوم کی یاد آتی، اور جو پرزنٹ جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بھی دہرایا جاتا۔ میں مجید عارف صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے ہمیشہ ذہن میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگ کیا ہے، کیسے سیاسی، سماجی، دینی، دلی، یہ تمام لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ان کا ذہن یہ بھی ہے کہ ان کے حالات کیا ہر ایک سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ میں اور بار بار میں مجید عارف صاحب کی ان کی میں بہت دل سے چاہتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے موقع دیا گیا، میں خدا حافظ۔ قائد مجلس کے اتحاد المسلمین اور دیگر کارپوریٹرز، عضو و شعراء، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، اور سامعین اکرام، میں سب سے پہلے مجید عارف صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نظام آباد کی اہم شخصیات جنہوں نے مختلف میدانوں میں، مختلف شعبے حیات میں جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو ایک کتابی شکل میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ حضرات، نظام آباد یہ بہت بڑا ایک تاریخی مقام ہے۔ یہ 1905 میں محب علی پاشا کے دور میں یہ نظام آباد آباد ہوا اور یہ نام سے موصول ہوا، اور یہاں کئی ایسے جو ہسٹوریکل مقامات ہیں ابھی تحقیق کرنا باقی ہے۔ دوسری اہم بات، اقبال نے کہا تھا تھے تو آبا و اجداد تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر کرتا ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ میں نے یہ کتاب دیکھی، اس کتاب میں اہم شخصیات کا ذکر ہے۔ مولانا عبدالغفار صاحب بہت دینی خدمات، نہ صرف دینی خدمات بلکہ سماجی خدمات بھی انہوں نے انجام دی ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت انہوں نے کئی ایسے کاریہ نمایاں انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اور اس کے بعد یعقوب فروش صاحب، یہ میرے استاد محترم شکر نگر میں ہیڈ ماسٹر تھے، میں اسکول میں پڑھتا تھا، وہ SSC، تو اس زمانے میں انہوں نے تفسیر قرآن کی کتاب لکھی، اتنی مشہور ہوئی کہ اسٹوڈنٹ بھی کہتے تھے کہ بھائی ابھی قرآن کی تفسیر لکھے ہیں۔ تو اتنا جو ہے کیا ہے، یہاں کے حضرات کے جو کارنامے ہیں وہ پوری جو کیا ہے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں۔ اور ولی اللہ خاصمی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ کیسے جو کیا ہے انہوں نے مختلف اداروں کے ذریعے سے، اپنی امامت کے ذریعے سے انہوں نے کیسی جو ہے بے لوث دینی خدمات انجام دی ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات کا اس میں ذکر ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اپنے اسلاف کو یاد کرنا اور ان کے کارناموں کو اور ان کی خدمات کو کیا ہے نئی نسل میں اجاگر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئی نسل کس طرف جا رہی ہے۔ آج حالات اور پھر ایجوکیشن کا بھی جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں جو صلاحیت نہیں آ رہی ہے، آج صرف ڈگریاں لیے جا رہے ہیں،
सलाहियत का नुकसान होता जा रहा है। तो लिहाजा ये सलाहियतें, दीनी सलाहियतें, दुनियावी सलाहियतें और फिर मुख्तलिफ शोबे हयात जो है उसमें भी जो है बच्चों को कमेंड हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा मैं इस मौके पर, क्योंकि ये बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी है, मैं एक तजवीज़ रखता हूँ भाई, क्योंकि निज़ामाबाद का जो कल्चर है वो यहाँ के तहजीबी अक़दार हैं जो हैदराबाद में निज़ामाबाद की मिसालें दी जाती हैं कि हैदराबाद के बाद निज़ामाबाद में वो कल्चर हमें हैदराबाद का मिलता है। तो ये कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए यकीनन ये इस किताब का बहुत बड़ा रूल किरदार रहेगा। और क्योंकि अगर हम शख्सियत पे लिख रहे हैं, यानी तारीख, तहजीब, अदब और इल्मी कारनामे, दीनी कारनामा को अगर इकट्ठा करना है, मुज्तमा करना है, तो उसके लिए अगर एक किताब की शक्ल में पूरे कारनामों को अगर ला लें तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि अक्सर महबूबनगर वालों ने एक किताब लिखी, उसमें उस किताब में शोरा का जिक्र है, खुतबा का जिक्र है, सहाफ़ियों का जिक्र है, अदबी अंजुमनों का जिक्र है, दीनी जो शख्सियतें महबूबनगर की, उन तमाम को एक किताब में इकट्ठा किया गया है। तो लिहाजा यहाँ भी अगर ये कोशिश करें, एक कमेटी बनाकर एक प्लान के तहत, एक प्रोजेक्ट के तहत अगर हम काम करें तो ये बड़ा अच्छा काम होगा। और रिसर्च स्कॉलर के लिए और तहकीक करने वालों के लिए और दीगर जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए क्या है, ये किताब कारगर साबित होगी। और दूसरी अहम बात यह है कि भाई उर्दू को, क्योंकि उर्दू को अपनी ज़िंदगी का लाजिमा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़बान को इस तरह फ़रोग़ दें जिस तरह आप अपनी औलाद की परवरिश करते हैं, औलाद की बर्दाश्त करते हैं। क्यों कि ये ज़बान, उर्दू ज़बान अखलाक साजी की ज़बान है, उर्दू ज़बान किरदार साजी की ज़बान है, उर्दू ज़बान शख्सियत साजी की ज़बान है, उर्दू ज़बान इक़्तिदार की ज़बान है। आज हमारे बच्चे उर्दू ना पढ़ने की वजह से माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, माँ बाप के हुक्म नहीं मान रहे हैं। ये अखलाक बाख्तरी का जो माहौल उर्दू नहीं पढ़ने की वजह से आ रहा है। आज से 40 साल पहले अगर देखें माशरा, खुद मेरे अपने ज़माने में कभी मामू से बात करना है, नाना से बात करना है तो इस तरह से सर झुका के बात करते थे, अखलाक मुद्दुमन अंदाज से बात करते थे, कभी सर उठा के बात नहीं करते। तो भाई आज क्योंकि दीगर लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाइए, लेकिन उर्दू एक ज़बान पढ़ाना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि इससे खुदा क्या है, खुदा की कुदरत क्या है, उसकी कुदरत कामिला क्या है और उसके इस्लामी जैसे इक़्तिदार क्या है, इस्लामी उसूल क्या है, आज बच्चों को नहीं मालूम है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे नाबालिग हैं, उनको नहीं मालूम कि भाई 5 अरकान फरो नहीं कह सकते बच्चे, उर्दू मीडियम के बच्चे कह सकते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है इस्लाम क्या है, इस्लामी इक़्तिदार क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि साहब एक उर्दू एक ज़बान, तो ऐसा आप उससे मोहब्बत करिए जिस तरह से आप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद के लिए आप पूरा दुख, दर्द, कर्ब हासिल करते हैं, उसी तरह से उर्दू के लिए भी जो है टाइम दें आप। अगर जिन बच्चों को नहीं आता है उनके माँ बाप से गुजारिश करता हूँ कि वो उर्दू को जो क्या है तातीलात में, अप्रैल में 3 महीने तातीलात मिलते हैं, जब एक ज़बान सिखाते हैं आप तो बच्चा कभी नहीं भूलता ज़बान सिखाने वाले। याद रखिए आप, ये एक रूहानी तोहफा है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। तो बच्चों को अपनी जो क्या है उर्दू सिखा दें। आपका पहनावा, आपका खिलावा कभी याद नहीं रखता, भूल जाता है। अगर एक ज़बान सिखाते हैं, कोई लैंग्वेज, खासतौर उर्दू अगर सिखाते हैं तो वो हमेशा याद रखा है मेरे नाना ने मुझको उर्दू सिखाया, मेरे भाई ने मुझको उर्दू सिखाया, मेरी बहन ने मुझको उर्दू सिखाया। ये रूहानी तोहफा है मेरे भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत दर्द तरफ की बात है उर्दू के ताल्लुक से, बहुत से मुफर्रिरीन ने कहा है तो इस ज़बान को आम करने की कोशिश करें, इस ज़बान को नई नस्ल से जोड़ने की कोशिश करें। खासतौर पर इंग्लिश बोलने का जो तबका है जो उर्दू से नाबालिग है, वो बच्चे इक़्तिदार से आरी होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उसको उर्दू से मरबूत करें, उर्दू सिखाएं। और अब ये किताब, क्योंकि इस किताब में बहुत अहम है शख्सियत का जिक्र हुआ है भाई, आज वो याद आ रहे हैं ये लोग कि मेरा शहर मेरे लोग, मैं मजीद आरिफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने खासतौर पर उर्दू को टेक्नोलॉजी से भी मरबूत किया है। 2-3 नाम याद आ रहे हैं, डॉक्टर असलम फारूकी, मजीद आरिफ साहब, मुकर्रम नियाज साहब और 2-3 लोग हैं। ये 5-6 लोग मिलकर जो है उर्दू को पूरी दुनिया में, उर्दू के तख्लीसात को, उर्दू के जो क्या है किताबों को, उर्दू शायरी को, उर्दू गज़लों को जो क्या है इन टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको मैं भरपूर अहले
निज़ामाबाद की तरफ से, उर्दू दुनिया की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ मजीद आरिफ साहब को। तो बेहतरीन किताब लिखी है। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब को भी मैं आप सरपरस्ती किए हैं। आप बहुत बड़ा जो है उर्दू के प्रयोग के लिए बहुत बड़ा कारनामा है। मैं आपको भी समीर में दिल से अहले उर्दू की जानिब से आपको मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि फिर आइंदा भी इसकी जो सीरीज़ हैं और बहुत सी शख्सियत हैं। यहाँ एक 1948-47 में मुर्तज़ा मुश्तहदी निज़ामाबाद में बड़ी बड़ी शख्सियत आए हैं भाई मेरी। यहाँ रहकर वो बहुत इल्मी अदबी काम किए हैं। फिर आगे चलकर एक डिक्शनरी भी मुरत्तिब की है मुर्तज़ा मुश्तहदी साहब। ये निज़ामाबाद में थे यहाँ पर 1947-48 में। खुद तबस्सुम फरीदी साहब, हाँ अली सिद्दीकी साहब भी, ये जो आलमी जो आदमी जो है क्या है वो फाउंडेशन उर्दू फाउंडेशन के बहुत बड़े हुए रवा हैं। तो इनका भी ताल्लुक यहाँ निज़ामाबाद से है। तो ये यहाँ की शख्सियात बहुत इस्लाम में, कानून में, अदलिया में, रेवेन्यू में ऐसे यादगार शख्सियत यहाँ गुजरी है मेरे भाई। तो बड़े बड़े कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। और ज़बान अदब के लिए तो यहाँ के उलमा और शोरा आज भी हैदराबाद का हमसरी का दावा करते हैं। बेहतरीन गज़लें लिखते हैं, बेहतरीन नज़में लिखते हैं, बेहतरीन मुशायरे भी होते हैं। यहाँ ऑल इंडिया लेवल के मुशायरे होते हैं मेरे भाई। तो इस तरह से बहुत बड़ा मकाम है निज़ामाबाद का ज़बान अदब के हवाले से। जिसके बाद मुख्तलिफ शोबे जात में भी जो क्या है निज़ामाबाद बहुत तरक्की कर रहा है। और इन किताबों के ज़रिए से भी जो क्या है फ़रोग़, बहुत से लोग किताबें लिख रहे हैं, बहुत सा जो क्या है इल्मी अदबी सरमाया तख्लीक हो रहा है। तो लिहाजा मैं फिर एक मरतबा मजीद आरिफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और ये मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि भाई ये किताब को एक मुजल्लिद एक जिल्द में अगर पेश करते हैं आप, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए, फिर जो तहकीक करने वाले हैं निज़ामाबाद के अदब पे और जो शायरी पे या सहाफ़त पे, तो उनको लिए बहुत आसानी होगी कि एक जगह उनको मवाद मिल जाएगा। क्योंकि सीरीज में क्या है 4-5 किताबें आ जाएंगी, तो ज़रा थोड़ा सा अलग अलग हालत में रहेगी। तो पैसा खर्च होता है, लेकिन जो क्या है इसके लिए एक तजवीज़ रखता हूँ कि भाई एक अच्छी एक कमेटी मोतबर अहले खलक की बना के यहाँ के पूरा सहाफ़त को भी ले लीजिए आप, इब्तिदा से आज तक यहाँ के जो क्या अदब को भी ले लीजिए, शायरी को भी ले लीजिए, कि यहाँ के बुजुर्गान दीन है, कि यहाँ के अल्लाह वाले लोग हैं, दीनी खिदमत आदमी बहुत अहम खिदमत अंजाम दे रहे हैं मेरे भाई। अल्लाह के पास बड़ा अजर मिलता है लोगों को दीनी खिदमत को। यही वही चीज़ है, आखिरत की हमारी वही चीज़ है। तो लिहाजा यहाँ निज़ामाबाद में भी कई जो क्या है दीनी खिदमत करने वाले लोग हैं और बाहर से मुख्तलिफ रियासतों से आकर यहाँ उन्होंने खिदमत अंजाम दी है। तो लिहाजा एक अच्छा सा एक दस्तावेज, तारीखी दस्तावेज, तहजीबी दस्तावेज, सकाफती दस्तावेज निज़ामाबाद के ताल्लुक से हमें क्या है एक जगह मिल जाएंगी। बस यही जब कलमत के साथ मैं मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ मदू किया है और फिर जैसे का सदर भी बनाया है। बात इफ्तिखार है मेरे लिए। मैं फिर एक मरतबा मजीद आरिफ साहब को सभी मिजल से मुबारकबाद देता हूँ, खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने भी सरपरस्ती की है। साथ ही निज़ामाबाद के मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दी है, इसको दोबारा से रोशनास मजीद आरिफ साहब यहाँ कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ कि जब मैं भी जो है तालिब इल्म था, तो मजीद आरिफ साहब भी थे, जामिन अली अफसर साहब भी थे, वकील फारूकी साहब भी थे, जिनको देखकर हमने लिखना और ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर हम देखते हैं तो निज़ामाबाद के सरजमीन में ऐसे अदीब जो है बहुत ही कम नज़र आते हैं जो नौजवानी में कुछ रहे। एक और वाक़या भी मैं यहाँ बताता चलूँ कि मजीद आरिफ साहब की बहैसियत अफसाना निगार या एक अदीब की पहचान नहीं है, बल्कि उर्दू टेक्नोलॉजी, यानी अब से मेरे 25 साल करीब 23 साल करीब का वाक़या भी याद आ रहा है। जबकि टेक्नोलॉजी रोशनास हो रही थी, टेक्नोलॉजी फैल रही थी दुनिया में, उर्दू के लोग जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे थे। ये निज़ामाबाद की एक वाहिद शख्सियत थी जो टेक्नोलॉजी से जुड़ चुकी थी। सुपर ग्राफिक्स के नाम से 2000 ईस्वी से पहले ही उनकी दुकान जो है आजम रोड पर खुल गई थी, जहाँ पर तबाद का काम यानी कि जो GDP का काम है वहाँ पर अंजाम दिया जाता था। क्योंकि मैं खुद एक रिसाला यहाँ से बच्चों के लिए निकालता था, माहनामा गाजी, माहनामा तौहीद। तो उस वक्त हम उनकी खिदमत के लिए मजीद आरिफ साहब के पास जाते थे। उस वक्त GDP ऑपरेटर लिखना या फिर कंप्यूटर पे उर्दू लिखना बोरा, अब तो भाई भी थे, उन्होंने जो है इतनी रकम होती बोल के कहते थे, लेकिन मजीद आरिफ साहब क्या कहते थे, आप काम कराइए, जो रकम है दीजिए उनको बोल के, वापिस जो है उन्हें दे दिया रकम आप चाहिए बोलते थे।
تو یہ خدمات مجید عارف صاحب کی ہے. اور جب ہم تلنگانہ کا ادبی پس منظر دیکھتے ہیں تو جیسے کہ پروفیسر فضل اللہ محترم صاحب ہے جو یونیورسٹی آف حیدرآباد چھوٹی مہارت رکھتے ہیں, ان کی ادب کی پہچان ہے. ان کے ساتھ ساتھ مجید عارف صاحب کا بھی نام تلنگانہ سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی لیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث فخر کی بات ہے کہ مجید عارف صاحب نے